So, hello everybody, and welcome you all to this new series of marathon, and we call this as clinical marathon because we covered a lot of books till now, and Alan's keynote, Bogus Monoptic Key. We tried to brush up few topics from Organon. We received a lot of great response from Organon, and we are still continuing Organon series. It's not that we have stopped Organon series. I am in touch with few good teachers who can enlighten us with some topics of Organon, which can really help in our practice. But because it's taking some time, we started out to not miss our chance to get in touch with some brilliant teachers, and one of them whom we could not miss out is Dr. Sominath sir. Sominath sir is, I'm telling you, he's one of the greatest personalities whom I have seen in the field of dermatology. He's awarded with so many, but he, see, more than all the awards that he has got for his excellent prescribing techniques and for his excellent cases that he has been solving. Moreover, he's a wonderful human being with lot of responsibility. I think I'm saying that सर ने जो केसेस सॉल्व किया है, आई डोंट थिंक सो आई हैव सीन एनीबडी सॉल्विंग सो मेनी डर्मेटोलॉजी केसेस एंड स्पेशलाइजिंग इन डर्मेटोलॉजी. Good morning, Sanjeev Dore sir is here. Good morning, sir. And he's also a teaching faculty in a lot of colleges. He has presented papers in a lot of international forums, and I happened to meet him at Sanjeev Dore sir's farmhouse for the first time, where we had all gathered to kind of an exchange our thoughts, and he was the one who came up with some amazing uh, clinical tips, or maybe say he guided us that this is how we look at the dermatological cases. And then definitely I here would just like to highlight that I am just the face of this marathon series. Initially it was maybe it was my idea. Ranjan Das supported it, but now people are joining, and one such person who has joined this initiative, we will try and get in touch with him soon today. I will just send an invitation to Somnath sir. Talk about Somnath sir, but I think again we value your time, sir. So, Namaste, sir. Namaste. Can you hear me, sir? Yes. Okay. Just one. Sir. Yes. Sir, good morning. Good morning. Thank you so much for your valuable time, sir. Yes. Good morning. Good morning to everyone. Yes, sir. And a lot of people are excited. Already 50 people have joined. Dore sir has already joined the live. He's listening to us. He's watching us. Okay. And Dr. Ranjan Belsare, our dear friend, Dr. Jitesh Sharma from Odisha, and lot of who are with us right now. Yes. Sir, so I was just telling all of them that I first time met you at, I had heard a lot about you, but the first time I met you at the Dore sir's farmhouse, where we had all gathered to exchange thoughts, and the way you and way you showed us that this is how you also look at the dermatological cases, and since then we have been inspiring. We are really inspired by your thoughts. So this is it, sir. I'm thanking you at the opening of the statement, because I know that this session will go
to a very deeper level, and I'm all ready with my books and my notes so that I will also be writing a lot. Okay. Yes. So, Definitely. sir, Hmm. yes, sir, you were saying something. हाँ. अम, पहले जो आपने कहा कि जैसे हम किसी चीज में जब हम स्पेशलिटी काम करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समझो हम अभी डर्मेटोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम किसी स्पेशलिटी में काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे से होता है और जब हम एक सब्जेक्ट पे काम करेंगे तो पूरी एनर्जी लेवल हम वहां पे देते हैं और ज्यादातर सक्सेसफुल केसेस से कम और फेलियर केसेस से हम ज्यादा सीखते हैं नई नई मटेरिया मेडिका पढ़ना और एवरीथिंग जैसे हम आगे डिस्कशन में देखेंगे कि एवरी रेमेडी वो किस प्रकार से काम करती है जो हमें पढ़ाया जाता है या हम जो सीखते हैं वो एंगल से न देखते हुए अगर हम डिफरेंट एंगल से वो रेमेडी का अगर देखें तो कितने सारे हमारे ब्लॉक केसेस है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं और जो फ्यूचर जनरेशन है होम्योपैथी का वो फ्यूचर जनरेशन यही है कि भाई कोई एक काम कर रहा है तो हम भी क्यों ना काम करें ताकि हम ये सेम है कि हमारी फैकल्टी हमारा होम्योपैथी का प्रचार प्रसार ये दोनों चीजें ऐसी है कि डेप्थ लेवल तक जानी ही चाहिए आज हम काम कर रहे हैं या सर जैसे आप डोळे सर भी है रंजन भी है अभी सर का जो जैसे डोळे सर गाइड करते हैं उनके पास जो मटेरिया मेडिका का भंडार है हम कितने भी दिन उनको सुने तो भी ऐसा लगता है कि नहीं बाबा हमने आज बहुत कम सुना है और हम उनको सुने तो वो प्यास हमेशा ही रहती है कि हम ऐसे टीचर से क्यों ना हम खुद को अपडेट करें और यही प्रेरणा जो नए जनरेशन के स्टूडेंट है या जो न्यू बडिंग होम्योपैथ्स है इन्होंने ये रखनी चाहिए ताकि ये ऐसा होम्योपैथी इज सो बिग समंदर की जो इसमें कभी यानी ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप आज कह सकते हैं कि मेरा पूरा मटेरिया मेडिका कंप्लीट है आज मुझे पढ़ने की जरूरत है नहीं ऐसा होता ही नहीं है और इट्स अ वेरी कॉमन थिंग और आज आपने ये प्लेटफॉर्म आपने दिया और नहीं नहीं मेरा सर, बहुत अच्छी हम बात लोग है को ये कोई बोलना दिक्कत चाहिए नहीं कि सर आपने थोड़ा सा मतलब तकलीफ उठा के, सर इंस्टाग्राम पे थे नहीं, सर ने स्पेशली अकाउंट बनाया सो दैट कि आई नो सर कि मतलब हम लोग इतना फॉर्चुनेट रहे ना सर कि हम लोग मतलब इंस्टाग्राम शुड थैंक अस कि हमारे वजह से एटलीस्ट 5-6 लोगों ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है। टीचर्स का, मैं स्टूडेंट्स का बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ बोलते हैं अरे हम लोग इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज अकाउंट बना दो, सर आ जाओ। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सीखेंगे, सर सीखेंगे सर। तो यही कि बहुत सब कुछ सीखना है। तो आई स्टार्ट माय थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सर। मैंने कुछ सोचा यस है यस कि यस मैं थोड़ा रेडी उस रेडी डायरेक्शन रेडी में आपको पूछता हूँ। यस यस सर आपका बेसिकली आपको डर्मेटोलॉजी में इतना मतलब डर्मेटोलॉजी एंड आई थिंक साइकेट्री ये हम लोग का बहुत मेजर फोर्टे है होम्योपैथी का। So, sir, like, यस how did you develop interest into dermatology? यस 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 इसके पीछे थोड़ी सी सिंपल एक स्टोरी है जहाँ पे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ जिस एरिया में वॉकिंग डिस्टेंस पे लेप्रेसी होम है और जब मैं इंटर्नी में था तब हमने लेप्रेसी होम विजिट करते थे और वहां पे लेप्रेसी से ज्यादा लेप्रेसी के स्किन सिम्टम यानी जो लेप्रोमेटस लेप्रेसी है और बॉर्डरलाइन लेप्रेसी की जो केसेस है उनमें ज्यादा स्किन मैनिफेस्टेशन रहते थे और वी हैव अ गुड रेमेडीज इन होम्योपैथी की जहाँ पे स्किन सिम्टम्स बहुत कम दिनों में वो जाते थे ऐसे हमने देखा जब हम दवाइयाँ देते थे और नॉन हीलिंग अल्सर्स लेप्रेसी में अगर बॉर्डरलाइन लेप्रेसी देखा जाए तो हिल के रीजन में जो अल्सर्स रहते हैं वो उनके हील होते ही नहीं और ऑटो एम्पुटेशन हो जाता है अपने आप। तो एक मैं सिंपल सी दवाई बता देता हूँ रेमेडीज हाइड्रोकोटाइल वेरी कॉमन रेमेडी विच वी यूज इन अ प्रैक्टिस और हमने हाइड्रोकोटाइल के बारे में इट इज अ गुड रेमेडी फॉर एन लेप्रेसी
लेकिन लेप्रोमेटस लेप्रेसी में ये ऐसी दवाई काम करती है कि वो इफ यू यूज इन मदर टिंचर और इन डाइल्यूशन फॉर्म, अल्सर भी भर जाते हैं, ऑटो एम्पुटेशन रुक जाता है, और पेशेंट जो 4 साल 5 साल 10 साल से भी ज्यादा समय का अल्सर है वो भर जाता है। ऐसे सिंपल सिंपल चीजें हमने वो लेप्रेसी हाउस में देखे, और बाद में पता चला कि नहीं बाबा, दिस इज अ वे कि हम इस प्रकार से अगर मटेरिया मेडिका देखते हैं। और देखो होता ये है, जब पिंपल का केस है, दवाई देते हैं, नेक्स्ट फॉलोअप हाँ। को पिंपल उसके चले जाते हैं, तो अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे हम आगे देखने वाले सोराइसिस के केसेस है, तो यस। वो 15 दिन पहले जब आता है, उसकी परिस्थिति जिस प्रकार से होती है, और 15 दिन के बाद दवाई के बाद जो चेंजेस वो फील करता है, यहाँ हम भी देखते हैं। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती है कि भाई आपका पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो ज्यादा एविडेंस बेस्ड रहता है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड सबसे अच्छा एविडेंस बेस्ड तो डर्मेटोलॉजी है। तो जैसे जैसे फिर वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि मटेरिया मेडिका पढ़ना हो, रेपर्टरी रेफर करना हो, या डिफरेंट क्लिनिकल जो एंटिटीज है डर्मेटोलॉजिस्ट की। लगभग अभी मैं फिलहाल हम नियर अबाउट डेली मोर देन 90 डिफरेंट क्लिनिकल एंटिटीज ऑफ स्किन, डेली हम उतने केसेस देखते हैं कि डिफरेंट डिजीजेस ऑफ स्किन, मोर देन 90 डायग्नोज स्किन डिसऑर्डर्स, वो तो होम्योपैथी में ठीक होते ही है। और इस प्रकार से वो जर्नी शुरू हुआ, और आज वो चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। यस सर, आगे तो और ग्रो होने वाला है। यस यस। सर तो बहुत बहुत मतलब सब लोगों ने, मतलब जब मैंने अनाउंस किया था कि डर्मेटोलॉजी पे होने वाला है, तो बहुत लोगों ने बहुत क्वेश्चंस भेजे थे कि आप ये पूछ यस लेना, आप वो पूछ लेना। लेकिन सर सबसे पहले मैं, मेरा जो मैक्सिमम मेरा मतलब अभी तो लाइव में सबको मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि अभी सब लोग हंसते हैं मेरे पे कि सर मेरे को जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी है वो एक्ने है सर। मैं सब पूछ लूंगा, सब डीपर लेवल पे जाएंगे सर, हाउ टू गेट गुड सक्सेस इन एक्ने, बिकॉज सब लिखा हुआ है, पेनफुल के लिए ये दो, सिस्टिक एक्ने के लिए ये दो, लॉट ऑफ रेमेडीज हैव बीन ट्राइड, बट सर व्हाट वुड, वेयर वुड यू से कि किससे शुरुआत करेंगे, तो कौन से रेमेडीज से स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी सम गुड सक्सेस रेट? ओके ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, एक्ने इज, देखिए एक्ने में होता ये दिक्कत है कि जैसे हम पेशेंट आता है सिंपल से कि बहुत सारी कॉस्मेटिक्स क्रीम या एलोपैथिक ऑइंटमेंट्स या होम्योपैथिक ऑइंटमेंट्स, जेल्स, फेस वॉशेस सब इस्तेमाल करके वो होम रेमेडीज करने के बाद फिर डॉक्टर के पास अप्रोच होता है। सिंपल सी हम जब देखते हैं कि मेनी टाइम्स बोविस्टा हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशंस और एलोपैथिक कॉस्मेटिक यूज। तो सबको ये पता है, लेकिन बोविस्टा कब नहीं देना है, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोविस्टा बोविस्टा आने के बाद एक्ने का केस आया, उसने बहुत सारे ऑइंटमेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए, हम बोविस्टा 30-100 1M या 10M या जो भी अवेलेबल पोटेंसी वो दे देते हैं। तब ये दिक्कत होती है, अरे बोविस्टा हर एक पेशेंट में तो नहीं काम कर रहा। ट्रू। बोविस्टा जो रेमेडी है वो कहाँ पे काम करती है मैं आपको बता दूं। बोविस्टा एलोपैथिक ऑइंटमेंट इस्तेमाल करने के बाद स्किन ड्राइनेस जो पेशेंट में रहता है ना, वो बहुत ज्यादा आ जाता है कि पेशेंट ये बोलता है मेरा पहला स्किन ऑयली था और हाँ। अच्छा था, लेकिन वो ऑइंटमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करने के बाद मेरा स्किन बहुत ड्राई हुआ है, और ये जो एक्ने है ना वो बहुत ज्यादा पेनफुल है। Painful acne and the dryness, and immediate history of using lots of ointments and the liniments or anything, then we use a Bovista 10M potency at least for 15 days. ओके। 10M, तो वो इफेक्ट्स चले जाते हैं, और इफेक्ट्स चले जाने के बाद जो एक लेयर बोविस्टा का था वो चला गया। बाद में जो भी लेयर पेशेंट में आता है, सपोज फॉर एग्जांपल केसेस ऑफ ए नाइट्रोम्यूर, तो हम नाइट्रोम्यूर 30-100 1M पे न जाते हुए, अगर हम 0/1 0/2 0/4 अकॉर्डिंग टू द ससेप्टेबिलिटी ऑफ दैट पेशेंट अगर वहां पे जाते हैं, और विद इन 1 मंथ जो पेशेंट 1 साल 2 साल से एक्ने से परेशान था, हाँ। वो परेशानी उसकी चली जाती है। ओके।
और एक बार वो नाइट्रोम्यूर से ठीक ठीक जब होता है तो डेफिनेटली हमने ना कुछ इन्वेस्टिगेशन पार्ट करना चाहिए पेशेंट का, उसका एलएफटी करनी चाहिए, हाँ फिर पेशेंट के हार्मोनल लेवल्स करने चाहिए। अगर पेशेंट मेल है तो हम सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड सीरम एसीटीएच लेवल, अगर उधर कोई दिक्कतें है उसमें हाँ हाँ तो वापस से ये होने वाला है कि वापस से उसको इरप्शंस आएंगे। हम्म इफ सपोज पेशेंट्स एसीटीएच लेवल एडेनोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर डिस्टर्बिंग है तो वी मस्ट गिव अ सिंगल डोज ऑफ एसीटीएच 30 और 200, तो उसकी वो बॉडी टेंडेंसी बहुत हद तक कम होती है और पेशेंट को बार बार एक्ने आना बंद हो जाता है। ये रहा बोविस्टा का, कि बोविस्टा में पेशेंट का स्किन ड्राई होना चाहिए। पहले ऑयली था, पहले लाइक थूजा और एसिटिक एसिड, पहले ऑयली था, यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स उसके वजह से ड्राई हुआ, और बाद में फिर हमने बोविस्टा इस प्रकार से अगर इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट बहुत दिनों तक नहीं चलते, पेशेंट फिर 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वो पेशेंट ठीक होता है और वो बाकी पेशेंट को लाता है ना। जो हमारे बारे में ये बताया जाता है कि होम्योपैथी में लेट रिजल्ट आते हैं या बहुत 2-3 साल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सिंपल सी चीज है। जैसे और एक मैं उदाहरण, जैसे आपने अभी एक्ने का पूछा, मेनी टाइम्स वी नेवर यूज द, ऐसे देखा गया है कि बावेल नोजोड इस्तेमाल करना या जो हमारे सार्कोर्स है अभी वो इस्तेमाल करते वक्त मटेरियल इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास। सपोज अभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, इसका मटेरियल है, लेकिन वो किस प्रकार से देने हैं ये दिक्कतें थोड़ी होती है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल फीमेल केसेस ऑफ पीसीओडी एंड अलोंग विद पीसीओडी, तो ये तो कॉमन सिम्टम है कि उस वो फीमेल में एक्ने आना ही है। तो अगर समझो पेशेंट इज ऑफ सिमिसिफ्यूगा और हमने उनको सिमिसिफ्यूगा देने के बाद लिटिल बिट सिमिसिफ्यूगा वर्क्स लाइक ए एस्ट्रोजन इफेक्ट, तो ये हमें समझना चाहिए कि सिमिसिफ्यूगा या एस्ट्रोजन हमने कब देना है। जैसे देखिए, जैसे जब हम लैब रिपोर्ट्स करते हैं कि सीरम एस्ट्रोजन लेवल, सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ये पीरियड्स के बाद 4 या 5 दिन के बाद हमने ये करने चाहिए, ना कि पीरियड चालू होते हुए या पीरियड के एंड में। जब हम एस्ट्रोजन लेवल मेंसेस खत्म होने के बाद दूसरे या तीसरे दिन करते हैं तो एग्जैक्ट लेवल पता चलती कि पेशेंट में कितनी थी। इफ इट इज अ नॉर्मल, आपको एस्ट्रोजन देने की जरूरत है नहीं, तो पेशेंट वहीं पे सिमिसिफ्यूगा से ही ठीक होने वाला है। बस पेशेंट के कॉमन सिम्टम और पेशेंट के डिसीज सिम्टम और पेशेंट की यूनिक सिम्टम, यहाँ पे हमें तो सिंपल जो हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम है वहां पे ही काम करना पड़ता है। एक सिंपल सी चीज है। होता ये है कि जब मेंसेस ड्यूरिंग, जब हम रेपर्टरी देखते हैं कि एक्ने बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस एंड आफ्टर द मेंसेस, जब हम ये रेमेडीज देखते हैं, अगर हम ये रेमेडी पढ़े तो ये पता चलता है कि देयर आर द वेरी कॉमन रेमेडीज इन दिस, लेकिन वो कॉमन रेमेडी देने के बावजूद भी पेशेंट में हमें इतना रिलीफ नहीं मिलता है जितना हमें एक्सपेक्ट है होता है। वो क्यों नहीं होता, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि रेपर्टरी जो है, देखिए रेपर्टरी इट्स अ गुड टूल डेफिनेटली, लेकिन वहां पे जो रेमेडी दी गई है उससे उतना हमें जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो कहीं पे हम पढ़ने में कहा तो कम पढ़ रहे हैं। यस सर। तो सिंपल एक्ने में ना पेशेंट की एलएफटीज मॉनिटर करना, पेशेंट के हार्मोन्स मॉनिटर करना, और उधर कुछ दिक्कत है कि ये देखना बहुत जरूरी है। वी हैव वेरी कॉमन रेमेडीज, बट वो कॉमन रेमेडीज कब इस्तेमाल करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल दूसरा कि पिंपल के बाद जब पेशेंट के चेहरे पे खड्डे आते हैं, या काले काले धब्बे जिसको हम कोमोडोस कहते हैं या स्कार मार्क कहते हैं, ये सब चीजें जो है ना एज वाइज वो डिफरेंट है। सपोज अ पेशेंट इज ऑफ 25 बिलो द 25 इयर्स ऑफ एज, एक्ने की ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उसके काले धब्बे नहीं जा रहे, यहाँ पे पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल बहुत हद तक कम रहता है। ओके। तो ये बताते, हम तो ये बताते कि पेशेंट को अच्छा सा खाना खिलाओ वगैरह वगैरह, ये कहते हैं, लेकिन विच इज द होम्योपैथिक रेमेडी विच विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव द हिज न्यूट्रिशनल लेवल।
we have a remedy like a Syncona that all we know कि Syncona is ailment from loss of vital fluid. यस सर। तो अगर पेशेंट में हम इस प्रकार का पेशेंट है कि दवाई देने के बावजूद भी उसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा दिख नहीं रहा है या काले धब्बे उसके नहीं जा रहे, इवन वी यूज बर्बेरिस एक्विफोलियम, कैडमियम सल्फ, ब्रोमियम, वेनाडियम, एवरीथिंग हम इस्तेमाल करके देखते हैं, लेकिन उतना रिलीफ नहीं होता है जितना हमें चाहिए। तो एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड यानी ये क्या कहता है कि पेशेंट के शरीर में जितना होना चाहिए उतना नहीं रहा, और उसको हमें रिकवर करने के लिए वी हैव अ रेमेडी लाइक अ सिंकोना। यस। तो यूजुअली आई यूज सिंकोना इन अ मदर टिंचर फॉर्म until and unless patient get improved. और आप इस्तेमाल करके देखिए सिंकोना मदर टिंचर, अगर आपने 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे अगर 1 मंथ भी दिया तो आप अनुभव करोगे कि पेशेंट में कितना जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। बस फीमेल केसेस में जब मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है उस वक्त आप सिंकोना ना दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एलिमेंट फ्रॉम में जा रही है पेशेंट, तो आप वहां पे सिंकोना देने के बाद वो और ज्यादा एग्रेवेट होता है, इसलिए वहां पे आप ना दीजिए। फिर एक सवाल एक्ने में ये भी रहता है कि जो फोरहेड टैन रहता है ना, बहुत सारे पेशेंट आते हैं फोरहेड टैन है, नेक पे टैन आता है, अकेंथिस डेवलप होता है। तो नेक फोरहेड टैन देखिए सिंपल चीज है। फोरहेड टैन पे हम जो रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल सन एक्सपोजर से है तो नेट्रा मार्स है, फिर सोल रेमेडी है, कैडमियम सल्फ है, और आगे जाके कुछ लीडम पाल भी रेमेडी अच्छी काम करती है वहां पे। लेकिन ये रूटीन रेमेडी देने के बावजूद भी फोरहेड टैन कम नहीं हो रहा। तो फोरहेड टैन के लिए हमारे पास बहुत अच्छी एक रेमेडी है जो कॉमन इस्तेमाल हम नहीं करते, लेकिन सिंपल सी रेमेडी है, ऑक्सीटोसिन। ओके। ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है, ये जो स्टूडेंट्स है, तो ऑक्सीटोसिन इज अ गुड रेमेडी। इट इज कॉल्ड जिसे हम कहते हैं ना, इट इज अ लव हार्मोन। जब ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल हम अच्छे से करते हैं, और कैसे ऑक्सीटोसिन कब इस्तेमाल करना है, अगर मैं जो फीमेल पेशेंट्स है तो कॉमनली हम क्या करते हैं कि मेंसेस खत्म होने के बाद उनको कम से कम 8 दिन ऑक्सीटोसिन देते हैं। उससे स्किन ग्लोइंगनेस अपने आप आ जाता है, ऊपर से कुछ लगाने की जरूरत होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर ना 1 या 2 लीटर पी के आता है हमारे पास स्किन इंप्रूवमेंट होने के लिए। लेकिन उसकी स्किन तो इंप्रूव हुई नहीं रहती है, उसके बावजूद पेशेंट को ना रेड एक्ने आ जाते हैं, उसका प्रूविंग सिम्टम आ जाते हैं। तो उन्होंने भी बर्बेरिस एक्वी मदर टिंचर ऐसे ही बिना टोटलिटी के दिया हुआ है, वो अनुभव करेंगे कि पेशेंट के चेस्ट पे, बैक पे, चेहरे पे ना रेड एक्ने आती है, एंड दैट रेड एक्ने इतनी पेनफुल रहती है, जिसको हम एक्ने वल्गैरिस कहते हैं, पेनफुल रहती है। यस। वो भी बर्बेरिस एक्वी मदर टिंचर वहां पे बोरिक सर ने ये जो दिया है ना कि क्लियर्स द कॉम्प्लेक्शन, ये कौन से पेशेंट में करता है क्लियर्स द कॉम्प्लेक्शन? ये क्लियर्स द कॉम्प्लेक्शन आफ्टर एग्जॉस्टिंग स्किन डिसीजेस। एग्जॉस्टिंग स्किन डिसीज कौन से है? सोराइसिस है, एक्जिमा है, लाइकन प्लानस है, और बुलस पेम्पिवॉइड है। आर दी एग्जॉस्टिंग स्किन डिसीजेस। ओके। एक्ने भी उसमें आ जाते हैं एग्जॉस्टिंग इफ इट इज मोर देन 5 और 7 years। लेकिन हम मैक्सिमम टाइम यही होता है कि पेशेंट अगर एक्ने का आता है तो वी हैव टू यूज बर्बेरिस एक्विफोलियम और द बिलिस्पर। ये दिक्कतें होती है। तो एक्ने में सिंपल से जैसे बताया कि राइट फ्रॉम बोविस्टा, सिमिसिफुगा, ऑक्सीटोसिन, ये सब चीजें हैं। ये जो हमने थोड़ा और सिंकोना मदर टिंचर का यूज जब आप करोगे तो आप अनुभव करोगे जो आपके ब्लॉक्स केसेस हैं वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके। क्वेश्चन सर बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज आई वांट कि हम लोग फ्लो में हमारा पहले पूरे टॉपिक्स कवर कर लें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में हम लोग ले लेंगे। सर ये तो एक्ने का हो गया, थैंक यू सो मच। आपने जो आई थिंक अगेन जो उस दिन आपने एक नया व्यू दिया था, आज सब लोगों को उस तरीके से सोचने के लिए,
एक डायरेक्शन दिया है सर आपने, विद लॉट ऑफ गुड इंडिकेशंस। आप इंडिकेशन तो बोल रहे हो, लेकिन सब लोग सुन रहे हैं कि रेपिटेशन और कब नहीं यूज करना है, कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, ये सब भी आप एकदम क्लियरली बता रहे हो, जो अभी आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टीचर्स इतनी क्लैरिटी से बताते हैं। बिकॉज सबसे पहले लोगों को यही होता है कि व्हाट पोटेंसी, आज कोई नहीं पूछ रहा है व्हाट पोटेंसी, बिकॉज आप ऑलरेडी बता रहे हो सर। थैंक यू सो मच सर। सो कैन वी हैव योर व्यूज ऑन द सोरियासिस, कि एग्जैक्टली सोरियासिस में बहुत लोगों को सक्सेस है, बहुत लोगों के केसेस बिल्कुल स्टकअप है, नहीं सॉल्व हो रहे हैं। सोरियासिस भी होम्योपैथी का वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट होता है कि हम लोग ट्रीट कर ही लेते हैं। तो सर सोरियासिस के लिए क्या हम लोग का अप्रोच रहना चाहिए, एंड व्हाट अगेन जस्ट लाइक यू शोड डायरेक्शन फॉर एक्ने, कैन यू गाइड अस फॉर सोरियासिस? यस यस यस, देखिए सोराइसिस ये ऐसी, एवरीवन नोज कि सोराइसिस एन ऑटो इम्यून। और उसके पहले मैं एक साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में हमने कोविड में सबने पढ़ा था कि पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म आया और वो पेशेंट चला गया। तो सोराइसिस में एक हर दिन 3 या 4 दिन में साइटोकाइन स्टॉर्म आता है। पेशेंट बोलता है कि स्किन मेरी अच्छी थी, रात को जब मैं सोता तो अच्छा था स्किन मेरा, और सुबह उठता है तो मेरी स्किन बहुत सारी रेड होती है, क्रैक्स आ जाते हैं और डिस्फॉर्मेशन इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारा भुस्सा निकलता है। सोराइसिस डिफ्यूजा यानी सर से लेके पैर तक जो पेशेंट में सोराइसिस है, हम उसको क्लिनिकली इट इज कॉल्ड सोराइसिस डिफ्यूजा। ये जो पेशेंट है इनमें रिलैप्स बहुत ज्यादा है, और इन पेशेंटों में बहुत ज्यादा, कितना भी हम पोटेंसी दवाई कितना भी अच्छे से क्यों ना दे, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना हम चाहते हैं। ये दिक्कत इस वजह से होती है पेशेंट के शरीर में कि पेशेंट जो न्यूट्रिशनल लेवल है स्किन का, वो न्यूट्रिशनल लेवल इतना जल्दी खा जाता है, सोराइसिस इतना जल्दी खा जाता है कि पेशेंट कितना भी क्यों ना वो डाइट से ले, वो स्किन तक पहुंचता ही नहीं है, और स्किन उतनी ड्राई हो जाती है, श्रिविल्ड हो जाती है, और क्रैक्स आना शुरू हो जाता है। तो हम एक सोराइसिस डिफ्यूजा के बारे में अगर बात करें तो सपोज केसेस ऑफ ग्राफाइटिस, we know the drug picture of graphitis, everything we know about the graphitis। और ग्राफाइटिस दिया पेशेंट ने, पहले 2-3 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट अच्छा दिखाया, उसके बाद वापस से पेशेंट में रिलैप्स आना शुरू हुआ, और फिर खुजली, फिर बाकी सब चीजें। फिर आप ये अनुभव करते हैं कि शुरुआत के 4 महीने हमने जितना उनको सपोर्ट किया दवाई के साथ, उतना बाद में नहीं हो रहा है। अच्छा, चाहे ग्राफाइटिस के बाद आप आर्सेनिक पे चले गए, आर्साइड पे गए, काली आर्स पे गए, या whatever the remedy you choose after the graphitis, पेशेंट एक बार डिस्टर्ब हुआ ना, फिर वापस से जगह पे आता नहीं है। ये दिक्कत बहुत सारे पेशेंट या प्रैक्टिशनर की है। ये क्यों होता है, ये पहले हम देखें। तो साइटोकाइन स्टॉर्म यानी क्या, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं, साइटोकाइन स्टॉर्म ये ऐसी चीज है जो हमारी शरीर में जो पेशियां है वो एक लाइन में काम कर रही थी, लेकिन जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, या जैसे हम सिंपल भाषा में बोले, जब सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और अचानक से दंगल हो गई या अचानक से बारिश है, कौन कहां पे जाए इसको पता नहीं रहता है, और फिर उस परिस्थिति में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म में पेशेंट के शरीर में यही प्रॉब्लम चल रहा होता है कि कौन सी पेशी किस दिशा में चली जाए ये पता ही नहीं होता है शरीर को। फिर वो कोलैप्स इतना जल्दी हो जाता है पेशेंट की, 8 दिन पहले पेशेंट 100% बेटर था, 8 दिन में वो पेशेंट पूरा खराब हो गया। ये किसने किया? ये शरीर, जैसे सबको हर एक को पता है कि इंटरलुकिन फैक्टर्स इन आवर ब्लड, उसमें इंटरलुकिन 22 एंड इंटरलुकिन 6 आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइन स्टॉर्म इन अ पेशेंट्स। तो सोराइसिस डिफ्यूजा का पेशेंट जब एग्रेवेशन फेज में चला जाता है, तब हमने ये दोनों इंटरलुकिन फैक्टर करने चाहिए। सपोज IL-6 इज अ नॉर्मल 6 लेवल, एंड पेशेंट आज नॉर्मल है आपके सामने बैठा हुआ, लेकिन IL-6 अगर उसका 20 है, तो ये दर्शाता है कि आगे वो कुछ दिनों में साइटोकाइन स्टॉर्म में जाने वाला है। एंड पेशेंट, सपोज पेशेंट ग्राफाइटिस का है, पेशेंट ठीक हुआ है, लेकिन उसका IL-6 ज्यादा है, तो हम प्रिकॉशन ये ले कि पेशेंट को हमें अभी ग्राफाइटिस से भी
स्ट्रॉन्ग और उसके मायाजम के हिसाब से ऐसी दवाई देनी है कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक सके. ट्रू, बराबर. तो वी हैव अ गुड रेमेडीज इन आवर साइंस टू अवॉइड द साइटोकाइन स्टॉर्म. ओके. तो बेसिक एक सिंपल सी मैं आपको रेमेडी बता दूं. सोराइसिस डिफ्यूजा में वी नेवर यूज अ बेलाडोना इन अ 10 ml और 50 ml पोटेंसी. अगर ग्राफाइट सिंपल ग्राफाइटिस का पेशेंट है और उसका IL-6 20 है, हाँ. और हमें पता है कि पेशेंट अभी आगे जाने के बाद वो बोलता है कि सर नहीं, अभी ये लाल पैच यहाँ पे था नहीं, अभी आना शुरू हुआ है, देन इफ यू यूज बेलाडोना 10 ml पोटेंसी फॉर ओनली 7 to 8 days अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह सुबह की डोज अगर उसको देते हैं तो वो रेडनेस, इंफ्लेमेटरी पैचेस वगैरह आना बंद हो जाता है, क्योंकि हमने साइटोकाइन स्टॉर्म को रुकवा दिया है. ये हुआ ग्राफाइटिस के साथ बेलाडोना है. हाँ. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज ऑफ नाइट्रोम्यूर स्टेट, हाँ. और उसका IL-22 और IL-6 ये अगर 15-20 है या 30 में भी है, हाँ. पेशेंट इज ऑफ नाइट्रोम्यूर स्टेट और ये है, तो वो रेडनेस इतना पेशेंट में हो जाता है कि रेडनेस कम कम करते करते फिर ना 2-4 महीने चले जाते हैं. तो वी हैव अ रेमेडी लाइक जी इटालिका. जी इटालिका. यस. तो जी इटालिका में जैसे टोमेटो जितना रेड रहता है ना, हाँ. उतना रेड पैचेस पूरे शरीर पे हो जाते हैं, और इतने बड़े 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 क्रैक्स हो जाते हैं पेशेंट को कि पेशेंट को लिटिल बिट मूवमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है. तो वी कैन अवॉइड द रिलैप्सेस, वी कैन avoid the further progression of disease. We have a Z Italica for natriuretic state. Okay. और अभी सोराइसिस में कॉमन जो रेमेडी इस्तेमाल करते हैं ना, जब तल हाथ और यानी पाल्मो प्लांटर सोराइसिस जो है, yes, उसमें सपोज वी यूज द पेट्रोलियम. क्रैक्स है, फिशर्ड है, ब्लीडिंग है, इचिंग है, एवरीथिंग लाइक एंड दैट ऑफ एन पेट्रोलियम. तो हम पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं. पेट्रोलियम बहुत अच्छे से मदद करता है, लेकिन वापस से उसमें रिलैप्स आ जाता है. हाँ. तो हम वो रिलैप्स किस प्रकार से मैनेज करें, तो वी हैव मदर टिंचर ग्लासेराजा गैब्रा, जिसको हम मराठी में जिसको जेस्ट मत कहा जाता है. जेस्ट गिलोय. गिलोय ना सर? गिलो ना. हाँ. ओके. ग्लासेराजा गैब्रा. या ग्लाइसीरिया ग्लाब्रा. वो क्या पेट्रोलियम का साइटोकाइन स्टॉर्म कौन रोकता है? ग्लासेराजा गैब्रा. इट इज अ मदर टिंचर फॉर्म. हाँ. हाँ. अभी होता ये कि कौन सी रेमेडी को कौन सा साइटोकाइन स्टॉर्म, ये तो प्रैक्टिस या अनुभव की बात है. हाँ. अभी एक दूसरी केस रहती है सोराइसिस में, पेशेंट के गर्दन के ऊपर या फ्लेक्सोरल रीजन यानी एक्सिला रीजन जहाँ पे फोल्ड्स है, उस फोल्ड रीजन में कॉमन रेमेडी सरसापरिला है, नाइट्रिक एसिड है, सेपिया है, वट एवर द रेमेडी वी यूज. लेकिन उसका रिलैप्स हमें कौन सी रेमेडी से मदद करती है? वी हैव मेल कम सेल रेमेडी, MEL, मेल कम सेल नाम की एक रेमेडी है, जो ये फ्लेक्सुलर टाइप ऑफ सोराइसिस में रिलैप्सेस कम कर देता है. इससे ये होता है कि हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है और पेशेंट डिस्टर्ब नहीं होता है. अगर पेशेंट में हम रिलैप्सेस कम दिनों में अगर मैनेज कर पाए, तो पेशेंट में आत्मविश्वास बन जाता है कि नहीं बाबा, कुछ भी दिक्कत हो तो डॉक्टर यानी होम्योपैथी उसको हेल्प करती है. अगर स्काल्प सोराइसिस है पेशेंट में, हाँ. और देखिए स्काल्प सोराइसिस में यही होता है कि पेशेंट कुछ दिनों तक तो 100% इंप्रूव रहता है. हाँ. लेकिन सीजनल वेरिएशन अगर होता है, तो सीजनल वेरिएशन होने के बाद वो वापस से पेशेंट उसमें आ जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब पहले ठीक हुआ था, वापस से बालों में डैंड्रफ भुस्सी निकलना शुरू हुआ है. तो हम मेल पेशेंट में तो बोलते हैं कि भाई आप पूरे बाल निकाल दो ताकि वो ये रहेगा, अच्छा रहेगा. हम फीमेल पेशेंट में तो ये बार बार नहीं कह सकते कि आप बाल निकालो या ऐसे करो. हाँ. तो वट एवर द यूर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गोइंग ऑन, विद दैट if you use a Cochlearia armoracea mother tincture, Cochlearia armoracea, yes sir,
then we have a Badiyaga in a mother tincture ये form. हाँ बढ़िया का Then Badiyaga. Then यस सर ये मिसिंग रेमेडी है, हम वो न्यूफुर लुटा. हाँ नूफर लूटी This is scalp psoriasis of children. जब हम ये किसी यानी ऑयल बेस में भी इस तरह, बच्चों में तो हम ऑयल बेस में भी उसको, अगर हमने एक 5 या 6 चम्मच ऑयल ले लिया, उसमें इसके 20 या 30 ड्रॉप्स नुफुरलुटा के डाल के अगर हम बालों को लगाते तो इट प्रिवेंट द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ स्कैल्प सोराइसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे मैंने आपको झीटालिका के बारे में बताया कि झीटालिका इज अ रेमेडी फॉर इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, यानी पूरे शरीर पे लाल, यानी टमाटर जैसे लाल रहता है सोराइसिस, और वो ठीक होता, बहुत कम पेशेंट में ठीक होता है, वापस से वो उधर आ जाता है. अभी देखिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं कि जब इस प्रकार का पेशेंट आता है, एलोपैथिक डॉक्टर उनको कैसे मैनेज करते हैं. दे यूजुअली गिव बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड हाई डोसेज ऑफ स्टेरॉइड, एंड विद दैट वो उनका पूरा इन्फ्लेमेशन यानी साइटोकाइन स्टॉर्म उनको बंद करते हैं, और बाद में फिर वापस से आता है, लेकिन वो कम दिनों में ठीक कर पाते हैं. तो हमारे होम्योपैथी में ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है? दिस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर दिस रेमेडीज. ग्लाइसराइड गाब्रा जैसे मैंने आपको बताया, झीटालिका बताया, these are the biological molecules in homeopathy which will prevent the cytokine storm. Along with your constitutional remedy, whatever the constitutional remedy you have, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी फिलहाल जो एक रेमेडी मैंने, एक मेरा पेशेंट था मर्कसॉल का, और मर्कसॉल ही इज अ कंप्लीट केस ऑफ मर्कसॉल, लेकिन मर्कसॉल से कुछ दिनों में उसको राहत होता था, लेकिन उसके बाद उसको रिलैप्स आते थे. तो आप बोरिक में मर्कसॉल के नीचे एक रेमेडी दी गई है, मर्क ऑरेटस. ये रेमेडी सिफिलिटिक टाइप ऑफ सोराइसिस में और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, और इफ इट इज अ मेल पेशेंट, जैसे हमें रेस्पिरेटरी और सोराइसिस में पता है कोरेलियम रुब्रम है, नाइट्रम सल्फ है, वैसे ये मर्क ऑरेटस ऐसी रेमेडी है जो मर्कसॉल की टोटलिटी है, लेकिन क्रॉनिक सोराइसिस है और मेल पेशेंट है. तो मर्क ऑरेटस एक ऐसा बून अभी मिला है कि मर्क ऑरेटस से जो भी ब्लॉक केसेस है सोराइसिस के, वो ब्लॉक केसेस मर्क ऑरेटस से सॉल्व हो जाते हैं. ओके. तो वो सॉल्व होने के बाद आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, आप उसके ऊपर जाइए, आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं. वो कंटिन्यू कर सकते हैं. और उसके आगे की एक दवाई है दैट एवरीवन नोज इज अ डीएनए. डीएनए जो रेमेडी है, वी कुडंट हियर. डीएनए, हाँ सॉरी सर, डीएनए. ओके डीएनए. ओके डीएनए. हाँ डीएनए का जो भी मटर रेमेडी का आज तक हमने पढ़ा है, जो मैंने सोराइसिस के पेशेंट में उनको देखा, तो डीएनए इज इक्विवेलेंट रेमेडी फॉर बराइटा ग्रुप. ओके. आपकी जो भी केस बराइटा ग्रुप से आते हैं, चाहे सोराइसिस हो या कौन सा भी स्किन डिसीज हो, अगर आपको बराइटा ग्रुप का पेशेंट है और वो उसमें रिलैप्स आ रहे हैं, तो इफ वी हैव अ डीएनए प्रिस्क्रिप्शन, तो वो रिलैप्सेस आना बहुत हद तक कम हो जाता है. ओके. उसके आगे की एक दवाई है, जब पेशेंट सोराइसिस का पूरा ठीक हुआ, पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट इज गोइंग वेरी स्मूथली, पेशेंट्स लैब रिपोर्ट इज वेरी नॉर्मल, और हमें अभी उस पेशेंट में वापस से रिलैप्स ना हो, वापस से उसमें वो सोराइसिस ना बने, तो वी हैव अ रेमेडी लाइक वर्निक्स कैसियोसा. तो वर्निक्स कैसियोसा ये क्या है? इट इज एन जो थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी के अंदर फिटस इन यूटेरो, उसके बॉडी के ऊपर एक मिल्की लेयर आता है, लेयर आ जाता है. वो मिल्की लेयर वो फिटस को हर चीज से प्रोटेक्ट करता है. यस, वो प्रोटेक्टिव लेयर है वर्निक्स कैसियोसा. यानी वी आर इनफ फॉर्चुनेट कि वी हैव वर्निक्स कैसियोसा इन होम्योपैथी.
Yes. A But I patient who think is, we yes, learned about वर्निक्स कैसियोसा टुडे सर. सुना तो कब से है, लेकिन आज पता चला कि यूज कहाँ करना है. जो पेशेंट पूरा सोराइसिस से ठीक हुआ है हाँ. उसको वापस से रिलैप्स ना आए, हाँ. इसलिए हम वर्निस कैसियोसा 30 पोटेंसी में अभी अवेलेबल है. हाँ. और वो वी यूज a vernis gaseosa after completion of our constitutional remedy till 3 months of his life. यानी जब तक पेशेंट हमने डिक्लेयर किया कि आप ठीक हो, लेकिन वर्निस हाँ. गैसियोसा 3 महीने तक हम देते हैं लगातार. हाँ. ओके. तो 3 महीने में देने से ये होता है कि उसकी बॉडी टेंडेंसी जो है सोराइसिस की बनने की, हाँ. वो बॉडी टेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाती है. दिस इज अ थिंग विच वी यूज इन आवर प्रैक्टिस. और उससे काफी हद तक हमारा लोड कम हो जाता है. जो पेशेंट सोराइसिस का रिलैप्स में जब आता है ना, तो देखिए जितना आनंद हमें सोराइसिस का पेशेंट ठीक होने के बाद रहता है ना, वो आनंद ज्यादा हाँ. दिन तक अगर टिकना है हाँ. तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम वो जानना बहुत जरूरी है. ट्रू सर, ट्रू सर. और एक इम्पोर्टेंट था सोरियासिस में कि सर सोरियासिस में सीजनल रिलैप्स भी बहुत आता है. कि बोलते हैं एक एक मतलब मे बी समर और विंटर, तो बोलते हैं कि इधर समर में या विंटर में वो रिलैप्स आता ही आता है. तो उस सीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सर एनीथिंग शुड वी थिंक अबाउट? यस 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 यस. देखिए अभी सिंपल हम रेमेडी अगर लेते हैं कि विंटर एग्रेवेशन पेट्रोलियम में है, सूरीनम में है, हाँ. समर हाँ. एग्रेवेशन सल्फर में है, नाइट्रम सल्फ में है, या विंटर ओके. एग्रेवेशन रेमेडीज काली आर्सेनिकम, या जो भी रेमेडी है, और सीजनल हाँ. वो पेशेंट सीजनल में आता है. हाँ. तो हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाए कि हाँ. अगर पेशेंट विंटर एग्रेवेशन का है, और हर एक विंटर के ये भी अलग है. हाँ, विंटर शुरू होते समय की रेमेडी अलग है. जो पेशेंट बोलता है कि नहीं विंटर शुरू हुआ और मेरा सोराइसिस पूरा ठीक था, वापस से अपने आप आया. हाँ. अपने आप आया यानी उसके शरीर में जो मायाजम एक्टिव है, दैट इज अ ट्यूबरकुलर मायाजम. स्लाइट सीजनल चेंज हाँ. रिलैप्सेस होल कंडीशन, ट्यूबरकुलर मायाजम. और जो पेशेंट बोलता है कि शुरुआत के 2-3 महीने में कुछ नहीं होता विंटर के, लेकिन एंड ऑफ विंटर जहां पे गर्मी भी होती है और ठंडी भी रहती है, दैट इज अ साइकोटिक मायाजम. और जो कोई पेशेंट बोलता है कि विंटर खत्म होने के बाद जब समर शुरू होता है, हाँ. वो लास्ट में मेरा सोराइसिस फिर रिलैप्स हो जाता है. हाँ. तो एवरी स्टेज पे ना रेमेडीज अलग अलग है. तो हम ये पहले शुरुआत में अगर देखा जाए कि विंटर शुरू हुआ और लगे उसको सोराइसिस आना शुरू हुआ, हाँ. तो रेमेडी देखिए कैसा है हाँ. कि विंटर बारिश पूरी खत्म हो गई, हाँ. और बारिश के बाद विंटर शुरू जब होता है, उस सीजन पे उसको तकलीफ शुरू हुई है. डैम्प हाँ. वेट वेदर हाँ. फॉलोड बाय कोल्ड ईयर. यस. और उस वक्त उसको प्रॉब्लम चल रहा है, यानी उसकी बॉडी वहां पे एडजस्ट नहीं कर पा रही है. हाँ. ओके. तो डैम्प वेट वेदर एग्रेवेशन की रेमेडी कॉमन अगर हम नाइट्रम सल्फ ले लें, हाँ. अगर नाइट्रम सल्फ उस समय से हम अगर शुरू करते हैं जब तक उसको एग्रेवेशन पीरियड है, कि शुरुआत में उसको एग्रेवेशन होता था ना, अगर बारिश खत्म होने से पहले अगर हम नाइट्रम सल्फ, यूजुअली मैं नाइट्रम सल्फ 0/1 पे पेशेंट को रखता हूँ. कब तक? लगभग 1.5 महीने तक. तो 10 आउट ऑफ 7 पेशेंट सेव हो जाते हैं इससे. 3 लोगों ने आना ही है, वो कुछ भी करो आप, उनने आना ही है. हाँ. लेकिन नाइट्रम सल्फ 0/1 आपका वो सेव कर देता है. ओके. फिर दूसरी केस है कि जहां पे विंटर लगभग 3 महीने का विंटर हो गया है, बाद में उसको ठंडी लग लग के उसको हुआ है. ही इज अ चिली पर्सन, और वो चिल एक्सप्रेशन करने के लिए उसको समय लगा. एंड वी हैव अ गुड रेमेडी लाइक अ हेपार सल्फ. If you read Heparsol from Boric itself or Kent's lesser writing, it is clearly mentioned कि if you use Heparsol in a 10 m potency, at least 10 m इस्तेमाल कब तक करिए जब तक विंटर खत्म नहीं होता. डेफिनेटली पेशेंट में रिलैप्स आना बंद होता है. We have a Suriname remedy.
It works at anti-miasmatic also and disease recovering agent also. तीसरा प्रश्न ये रहता है कि एंड पार्ट में, यानी एंड में आया है कि ठंडी खत्म हो गई और बारिश यानी समर शुरू हो रहा है। जैसे हम बोलते कि नाइट में बहुत ज्यादा ठंडी रहे, डे में बहुत ज्यादा गर्मी है। We have remedy like a dull camera, common remedy, cold nights and hot days. तो डल कैमरा से काम नहीं होता वहां पे। डल कैमरा इज कंप्लीटली प्योर केस ऑफ एन पेशेंट्स ऑफ अर्टिकेरिया एंड अदर डिजीजेस। तो डल कैमरा से अच्छा रेमेडी है बोरैक्स। ओके। तो उस समय अगर हम बोरैक्स देते हैं, तो बोरैक्स से पेशेंट का रिलैप्स कम हो जाता है। दिस इज थिंग कि 10 पेशेंट को आप देंगे तो 6-7 पेशेंट में आपको इंप्रूवमेंट लगेगा, 3 में तो रिलैप्स आने ही वाला है। वो ये 3 कौन है पता है? ये 3 पेशेंट आपको जमीन पे लाने वाले और आपको मटेरियल का अपडेट कराने वाले पेशेंट है, जो हमें रेगुलर करना चाहिए। ट्रू। तो आगे के सीजन में आपको और आगे की रेमेडी मिलती है कि भाई आप ये इस्तेमाल करिए। दिस इज द रिलैप्स केसेस ऑफ सोराइसिस, वेदर इन ऐसे सिचुएशन में हमें माइजमेटिक रेमेडी देखनी है और थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा क्लिनिकल यूज के बारे में सोचे। क्योंकि जिन्होंने भी बट रेमेडी का लिखा है ना, ऑल आर द एलोपैथ्स, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका आईक्यू लेवल डेफिनेटली हमसे ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। तो हम उतना ग्राफ्स नहीं कर पाते जितना उन्होंने ग्राफ्स किया था। दिस इज द थिंग। यस। और पूछिए सोराइसिस के बारे में। सर, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि राजेंद्र श्रीमाणी सर इज आल्सो वाचिंग अस। अभी उन्होंने नीचे कमेंट करके भी बताया है कि ही इज रियली लाइकिंग दिस लेक्चर। सर जस्ट हम लोग लास्ट टाइम जब भी डोडे सर से बात कर रहे थे ना, इंस्टा लाइव पे भी बात हो रहा था, तो सर ने बहुत ज्यादा सक्सेस विटिलिगो के बारे में भी बोला था कि देयर आर सम डॉक्टर्स हु आर, मतलब बहुत लोग विटिलिगो के केसेस दिखाते हैं बिफोर आफ्टर, अच्छा हो गया। बट बहुत, आई थिंक जिसका सक्सेस रेशियो है ना, उससे ज्यादा तो डॉक्टर्स को अभी चाहिए। अभी देयर आर मोर डॉक्टर्स हु आर फेलिंग इन विटिलिगो देन द डॉक्टर्स। Sir, do you have something, maybe something in brief, because it's a huge topic, but something where we can ideally start with? Yes. विटिलिगो में भी देखिए, ये भी ऐसा ऑटोइम्यून डिजीज है कि जहाँ पे जब होम्योपैथ के पास 10 अगर पेशेंट आते हैं, उसमें से 2 ही पेशेंट खुश रहते हैं। 8 पेशेंट तो नाराज ही रहते हैं या होम्योपैथी से कुछ उनको कर नहीं पाते। ये एवरी होम्योपैथ की स्टोरी है। तो सिंपल से 2 पेशेंट तो अपने आप ठीक होने वाले, वो आपके नाम से या कौन सी भी अगर आप दवाई दे, आरसेल्फ लेबम से लेके कौन सी भी अगर देते, वो अपने आप ठीक होते हैं। 8 लोग जो है 80% फेलियर अगर जिस बीमारी में है, तो वहां पे हमें काम बहुत ज्यादा करना है। तो विटिलिगो के बारे में मेरा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हम करते हैं काम कि पेशेंट ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो 2 एंटिटी अलग है। कॉमन है कि ल्यूकोडर्मा इज आफ्टर इंजुरी व्हाइट डिस्कलरेशन ऑफ परमानेंट व्हाइट डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, और विटिलिगो इज ऑटोइम्यून डिजीज वेयर द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज लेस एंड मेलानोसाइट सिंथेसिस इज वेरी पुअर, तो व्हाइट डिस्कलरेशन आ जाता है, तो उसको हम विटिलिगो कहते हैं। इट इज अ प्योरली ऑटोइम्यून डिजीज। दिस इज अ मैकेनिकल आफ्टर मैकेनिकल इंजुरी और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो हम ल्यूकोडर्मा के बारे में मैं सिंपल सी चीज बता दूं। जो पेशेंट सपोज जो पेशेंट वर्कर्स है, जहां सीमेंट में काम करते हैं या किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, या जो हाउसमेट्स है जो कंटिन्यू डिटर्जेंट में काम करते हैं या पानी में काम करते हैं, उनमें अपना डिस्कलरेशन हाथों पे, यानी एक्रेल विटिलिगो हम जिसको कहते हैं, यानी उंगलियों के ऊपर या उंगली के बीच में या पैरों के उंगलियों के बीच में उनको विटिलिगो यानी व्हाइट डिस्कलरेशन हो जाता है। अगर हम इसको पकड़े, सपोज सीमेंट फैक्ट्री में कोई काम, या जो ये सीमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं, तो उनमें वो कंटिन्यू सीमेंट लग के उनका डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ये इफेक्ट्स हमें निकालने के लिए वी हैव अ रेमेडी लाइक अ सीमेंट।
सीमेंट 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 30 एज अ पोटेंस, रेमेडी, या सीमेंट 30। सीमेंट 30 आप लगभग उनको ना 1.5 महीने तक देना पड़ता है। हाँ। तब ना वो सीमेंट की एलर्जी जो हुई है वो कम हो जाती है। और फिर हम्म आप आपके रेमेडी के ऊपर आइए, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। फिर हम्म। जो इंजुरीज होने के बाद होता है पेशेंट में, अगर समझो हाँ किसी बच्चे में खेलते खेलते लग गया, वो गिर गया और उसके बाद वो डिस्कलरेशन हुआ और उसके वजह से उसको नहीं आ रहा है पिगमेंटेशन अभी, हम्म तो एलिमेंट फ्रॉम लैसरेशन, एलिमेंट हम्म फ्रॉम इंजुरी अगर हम हम्म। पकड़े तो उसमें रहता है कि अर्निका से लेके बेलिस्पर से लेके रेमेडी है। हाँ अर्निका इज द रेमेडी वेयर ओनली ऊपर वाला इपिडर्मल स्किन लेयर चला जाता है। हाँ वी नो द बेलिस्पर, बेलिस्पर इज फॉर डीपर टिश्यू हाँ इंजुरी, हाँ कि फ्रैक्चर तक हुआ और पूरा मसल ब्रेक हुआ और सब ठीक हुआ लेकिन स्किन अच्छी नहीं हुई। हम्म अर्निक इज अ सुपरफिशियल रेमेडी, बेलिस्पर इज अ डीपर रेमेडी। हम्म फिर जब इनमें अगर बोन हम्म पार्ट पे जब किसी पेशेंट को बार बार हम सब करके भी वहां पे बोनी यानी फिंगर्स पार्ट है, एंकल जॉइंट है, एल्बो है, या हाँ यहाँ पे टेम्पोरल रीजन है, इस एरिया का विटिलिगो नहीं जाता, तो हाँ नाउ वी हैव अ रेमेडी लाइक एन ऑक्सीजन, हाँ। देन वी हैव एन ओजोन। यस। तो ऑक्सीजन के बारे में मैं बताऊं कि ऑक्सीजन ऐसी रेमेडी है कि जो विटिलिगो का क्रॉनिक केस है लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन हाँ। विटिलिगो ऑन अ बोनी पार्ट, हम्म we use oxygen remedy in a liquid doses for a for frequent doses for a long time। हम्म आप अनुभव करोगे कि पेशेंट में पिगमेंट डेवलप होना शुरू हो जाता है। हम्म रहा सवाल ओजोन का, ओजोन हम्म क्लिनिकली प्रैक्टिस में हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एन ऑइंटमेंट्स, हम्म। और बहुत सारे पेशेंट आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करके उधर लगा लगा के वो स्किन लेयर पूरा खराब कर देते हैं, हाँ या धूप में बैठ बैठ के वो स्किन पूरा बर्न कर देते हैं। हाँ। उसमें अगर हमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो वी यूज ओजोन इन 30 to 101 एम पोटेंसी। ओके। यूजुअली ट्रू। a patient who is suffering from vitiligo more than 20 years, हाँ 30 हाँ years, और या और 10 साल के आगे का जो पेशेंट है और हमारे पास आया, हाँ। तो यूजुअली वी यूज एंटीरियर पिट्यूटरी 30 पोटेंसी, एटलीस्ट वी यूज एंटीरियर पिट्यूटरी एटलीस्ट फॉर 4 to 5 months। ओके। तब ना उस पेशेंट में ये काम शुरू हो जाता है। दिस इज हम्म नॉट एन कोराइजा वेयर वी गिव अ सिंगल डोज ऑफ नक्सोमिक एंड पेशेंट इज रिकवर्ड completely till the afternoon. This is not possible. हम्म This is a long standing disease where हम्म you have to use a potency in a low with हम्म continued doses, then only the vital force is going to upgrade। कि anterior pituitary आपने 30 पोटेंसी दिया और 2 महीने के बाद पेशेंट को बुलाया, पेशेंट वहीं पे रहेगा, ठीक नहीं होगा। हम्म हम्म। और विटिलिगो के बारे में मैं ये बता पाऊं कि हम जैसे लैब रिपोर्ट्स करते हैं ना, हाँ तो हाँ। यूजुअली विटामिन D3, विटामिन B12, सीरम फेरिटिन यस। लेवल, जो ये चीजें है ना, इनके ऊपर ना बहुत अच्छे से काम करना चाहिए ताकि प्रिस्क्रिप्शन बहुत फाइन जाता है हमारा। अब पेशेंट इज एनीमिक, हाँ पेशेंट एनीमिया का है, उसको विटिलिगो है, हाँ स्किन न्यूट्रिशन है ही नहीं अंदर, तो हाँ। पेशेंट जब तक आप ये एनीमिया रिकवर नहीं करते ना तब तक विटिलिगो ठीक ही नहीं होता है। नहीं ठीक होगा। तो होम्योपैथी में इटसेल्फ फेरम फॉस 3x है, हम्म। स्पिरुलिना टिंचर है, एंटीऑक्सीडेंट, स्पिरुलिना। इतने सारे हमारे पास अच्छी मेडिसिन है कि जहां से हम पेशेंट को इम्प्रूव कर पाते हैं। हम्म। तो अगर हम ये इम्प्रूव करें, फेरिटिन लेवल अगर पेशेंट का इम्प्रूव कर पाए तो पेशेंट अपने आप जल्दी ठीक होता है। ओके। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है जब बिग पैचेस ऑफ विटिलिगो रहते हैं ना, उनमें ना हाँ पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिखने में बहुत समय लगता है। तो यूजुअली
एक फॉर्मूला जो है वो है, ये है कि परसेंटेज ऑफ विटिलिगो एंड द हाँ पेशेंट्स एज, हाँ ये अगर कुल मिला के 60 के आगे चला जाता है ना, हाँ तो आप पेशेंट को बस आए, आप मुझे मिले, हाँ। दवाखाना देखा, ठीक लगा मुझे, आप वापस ना आओ। ये अच्छा। सबसे सिंपल है। मैं करता हूँ, देखता हूँ, करेंगे, इससे ना बहुत दिक्कत होती है फिर। हम्म परसेंटेज ऑफ विटिलिगो एंड पेशेंट का एज, ये क्या अगर समझो, पेशेंट का एज 55 ईयर्स है एंड परसेंटेज ऑफ विटिलिगो इज 7%, इट हाँ। इक्वल टू इज 62। आप वो पेशेंट को देखो मत, उसको बोलो कि ठीक है, इस मेरे से नहीं होगा ये, हम्म। क्योंकि उनको गुड सर। हाथ ही ना लगाओ, क्योंकि वो होगा ही नहीं। हाँ। और कभी कभी ऐसे चीजें होती है कि हम देखते हैं कि नहीं, पेशेंट का एज ज्यादा था लेकिन इंप्रूव हुआ, हम्म वो दवाई से ज्यादा ना, वो हम्म जैसे आगे के एज चला जाता है, बाकी हार्मोन्स कम होने के वजह से, ये फिजियोलॉजी में है हम्म कि बाकी हार्मोन कम होने की वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल या एसीटीएच लेवल कम होने की वजह से मेलानोसाइट अपने आप इंप्रूव हो जाता है। हम्म हम्म। तो पेशेंट ऐसा ही बोलता है आके, अरे डॉक्टर, मैंने सब दवाई बंद करने के बाद मेरा ये ठीक हो गया, दवाई जब तक मैं लेता था ना तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस वक्त उसका एज ना मोर देन 60 या 55 के आगे चला गया रहता है। हाँ। तो अपने आप वो ठीक कोई हर एक पेशेंट में नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट में अपने आप ठीक हो जाते हैं पेशेंट। हम्म तो विटिलिगो में हमने ओजोन से लेके ऑक्सीजन, एंटीरेट, पिट्यूटरी, सीमेंट, हम्म। बेलिस्पर, अर्निका, ये सब चीजें हमने देखी, ये प्रैक्टिस में बहुत मदद करती है। और जैसे आपने भी मुझे एक माइका रेमेडी के बारे में मैंने पूछा था आपको, हाँ 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 सर, बात हुआ था हमारा। बात हुआ था, तो माइका का जो जितना मैंने लिटरेचर रिव्यू किया ना, हाँ माइका हाँ इज हाँ गुड रेमेडी फॉर लिकोडर्मा, नॉट अ विटिलिगो। हाँ। आफ्टर इंजुरी रेमेडी इज माइका। माइक का। और माइका और अर्निका, माइका और अर्निका अगर आप साथ में देंगे ना, सुपरफिशियल लेयर इंजुरी और उसके बाद उसको डिस्कलरेशन हुआ है, हाँ 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 इफ यू यूज द अर्निका इन 10 पोटेंसी, माइका इन 30 पोटेंसी, हाँ। आप अनुभव करोगे कि 3 महीने में पेशेंट आपका रिकवर, यानी रिकवर हुआ रहता है। हम्म क्योंकि अभी यहाँ पे हम स्लाइड नहीं दिखा पाते हैं, तो हाँ। मैंने माइका और अर्निका का जो पेशेंट है ना, जब हाँ। मिलेंगे तब आपको यस कितना यस। वो जल्दी इंप्रूव हुआ है। हम्म। ओके। जैसे ऑक्सीजन के बारे में भी, जो एल्बो के है, एंकल के है, हाँ। नेजल एरिया के जो विटिलिगो है, ऑक्सीजन देने के बाद किस प्रकार से इंप्रूवमेंट होती है ना, हम देख पाते हैं। दिस इज हम्म क्लिनिकली, अगर हम कोई अगर प्रैक्टिशनर पूछता है कि सर ये मटरा मेडिका में दिखाऊंगा मैं, हम्म अरे मटरा मेडिका फार्मेकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच इज टू बी अपडेटेड। हम्म मैं स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर को यही बोलता हूँ कि बाबा, अगर बोरिक सर अभी जिंदा होते तो वही बोरिक रहता क्या, नहीं, वही बहुत कुछ मटेरियल ऐड का होता रहता है। क्या, हाँ। वो कहाँ तक गया रहता। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मटेरियल को अपडेट करें हम्म और उसको क्लिनिकली वेरीफाइड केसेस का डाटा लगाए। हम्म, आपके पास अगर प्रूफ है, हाँ। आपने ऑक्सीजन दिया है तो प्रूफ दिखाओ। अगर हम्म प्रूफ है ऑक्सीजन से इंप्रूवमेंट होता है, तो मटेरियल का क्यों ना अपडेट हो। हम्म ये बहुत जरूरी है। इस विचार से बहुत सारे प्रैक्टिशनर मैंने अभी जब आते हैं मेरे पास, तो ये पता चलता है कि सर ये कौन से मटेरियल में दिया है, ये कौन से रूब्रिक में दिया है। हम्म अरे दिस इज ओनली गॉसिपिंग टॉपिक, हम्म। इससे काम नहीं चलता है। ये हाँ। हमें इंप्रूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक वो रेमेडी लेके गई ना, बस दैट इज इनफ इन हम्म प्रैक्टिस। मेरी हम्म। केस जो ब्लॉक थी वो डिसॉल्व हो गई। हाँ। ट्रू। सर, लास्ट अभी एक क्वेश्चन आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आप प्लीज, मैं आई पर्सनली नो, आई एम जस्ट लेटिंग अदर्स नो दैट सर इज डूइंग एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क। सर बहुत सारे, जो सर ने बोले कि देर आर रफली 90 क्लिनिकल कंडीशंस, तो ये तो सिर्फ, बट सर उसमें भी सब क्लिनिकल जो टाइप्स भी होते हैं। तो सर इज डूइंग एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क एंड आई एम श्योर दैट समडे दिस रिसर्च विल कम आउट, बिकॉज रिसर्च जो ऑथेंटिक होता है उसको बहुत साल लगता है कि कुछ उसमें प्रोडक्टिव दिखाया जा सके। सो सर का डेफिनेटली वो काम चल रहा है, बट सर उसके साइमल्टेनियसली आई वुड रिक्वेस्ट
कि सर आप प्लीज एक बुक भी, एक कभी कुछ ट्राई करना सर, आपके आप बुक आए तो डर्मेटोलॉजी का हम लोग को थोड़ा और नॉलेज मिले सर। बट व्हाट आर द बुक्स दैट यू रीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, या फिर आप जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे कि क्या बुक पढ़ के थोड़ा नॉलेज डर्मेटोलॉजी का थोड़ा हाईलाइट हो सकता है? ओके ओके ओके, देखिए एक सबसे ज्यादा फर्स्ट डर्मेटोलॉजी इन वर्ल्ड हु ऑन द नोबेल प्राइज इज डॉक्टर आरजे वालिया. ओके. He is a boss of dermatology. He is from Switzerland. I have Okay. 3 books of his. अगर हम psoriasis के बारे में देखें तो psoriasis have 1200 pages of psoriasis literature. 1200 पेजेस का psoriasis का लिटरेचर है उनका. तो देखिए उसमें psoriasis की कितनी डेप्थ रहेगी. सिंपल एक्ने के उनके 80 पेजेस है. हाँ. तो पैथोफिजियोलॉजी, इटियोपैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी, देन पैथोफिजियोलॉजी एंड देन द डिसीज प्रॉपर, देन द रिसर्च, एवरीथिंग कवर्ड इन डॉक्टर आरजे वालिया बुक. हाँ. अभी आरजे वालिया जब मैं शुरुआत के प्रैक्टिस में, ये मेरे पास जो बुक है वो 13 साल पुराना बुक है. अच्छा. वो पहले स्विट्जरलैंड यानी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका वहां से मैंने मंगवाया था. तो वो अभी वो मिलता नहीं, लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी इन्होंने हाँ, हाँ. उसके राइट्स लिए हैं और वो बुक मिलता है 3 वॉल्यूम में इंडिया में. अच्छा. तो टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी बाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी. ये बुक मिलता है आपके केम अस्पताल के सामने जो बुक स्टॉल है, क्या नाम है? भलानी. उनके बुक हाउस. हाँ, वहां से मेरे एक स्टूडेंट ने भी बुक्स मंगवाए हैं. अच्छा. इट कॉस्ट नियर अबाउट 70,000, लेकिन दैट इज वर्थ, क्योंकि आपको इतना सारा डेप्थ मिलता है ना. हाँ, हाँ. जब आप इतने डेप्थ में पढ़ते हैं तो केस मिस नहीं होता आपका क्लिनिकली. अच्छा. एंड बोरिक इज अ पैथोलॉजिस्ट. तो हम्म. बोरिक सर को जो बताना था ना, हाँ. वो जब हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना तो अपने आप वो लिंक हो जाता है. यार दिस रेमेडीज फॉर दिस क्लिनिकल कंडीशन. हाँ. बोरिक सर नॉट गिवन अ फिलोसॉफिकल लैंग्वेज, नॉट एवर. ही हैज गिवन अ क्लिनिकल वर्ड्स ऑफ क्लिनिकल नॉलेज. तो कब वो पता चलता है? जब हम ये क्लिनिकली डेप्थ में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी जब पढ़ते हैं ना, तब ना पता चलता है वो. हाँ. डॉक्टर आरजे वालिया का बुक है. और एक अभी देखिए, मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी का मेंबर हूँ. तो उनका ये बुक रहता है, दिस इज आईजेडी. हाँ. दिस इज अ इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी. इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी. तो इसमें डेली बेसिस पे 4 महीने में एक जर्नल आता है ये. हाँ. तो जो डर्मेटोलॉजी में आज तक रिसर्च हुआ है, सिंपल केस से लेके कॉम्प्लिकेटेड केसेस तक, हाँ. वो सब चीजें इसमें दिखाई यानी उन्होंने दिया रहता है. तो नया क्या चल रहा है डर्मेटोलॉजी में, उन्होंने नया लिटरेचर रिव्यू क्या किया है, और सिंपल मेडिसिन में उन्होंने क्या बदल किए हैं, ये हमें पता चलता है. और जो पेशेंट एलोपैथी लेके हमारे पास आता है, तो उसके एडवर्स साइड इफेक्ट को टैकल करने के लिए हमें क्या काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इससे जल्दी अपडेट हो जाते हैं. दिस इज, और मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, लेकिन बेसिक सोर्स बुक, एवरी डर्मेटोलॉजी बुक, अगर आप कौन सा भी बुक लेके आएंगे, तो उसमें डॉक्टर आरजे वालिया का नाम लिखा ही रहता है. इट इज रेफर्ड, यस, इट इज अ रेफरेंस फ्रॉम डॉक्टर आरजे वालिया. थैंक यू सो मच सर. आपने बुक्स के लिए भी अभी काफी हाईलाइट कर दिया सर. लास्ट टॉपिक, आई वांटेड टू थैंक आयुष अ लॉट, इसलिए मैंने आयुष को स्क्रीन पे भी लिया है, बिकॉज आयुष हैज बीन रियली रियली सपोर्टिव. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने शुरुआत किया था ये सब चीज का, कि आई वांटेड कि सब तक हर चीज जो मैं सीखता हूँ वो बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए. तो नाउ आयुष हैज जॉइंड दैट मूवमेंट के पहले उसने डोडे सर से भी बुरा बात करके कि नहीं सर करते हैं करके दो,
एंड आपसे भी रिक्वेस्ट करके उसने मेरे लिए बहुत आई वांटेड टू थैंक यू आयुष के फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव रियली बीन वेरी सपोर्टिव एंड आयुष एक्चुअली मैं तेरे को क्वेश्चन पूछने वाला हूँ एक, तो तू थोड़ा रेडी रहे हाँ अभी। चलेगा। अच्छा नहीं सर के पास अभी whatever time you have learned, what do you think what has really worked for fungal infections, because that is also one very viral question sir, जिधर भी जाओ हर क्वेश्चन हर इंसान, बिकॉज मैंने जैसे अनाउंस किया ना तो पहला लिस्ट मेरे को आया था मेरे को इंस्टाग्राम पे कि सर को फंगल इन्फेक्शन पूछ लेना बट अभी अगेन सर बिकॉज यू सेड कि देयर आर 90 क्लिनिकल डायग्नोसिस दैट यू आर वर्किंग ऑन एंड 1 घंटे का टाइम इतना इनफ होता ही नहीं है, सो Yes. जब भी मौका मिलेगा हम तो आपसे और सीखेंगे, बट if Ayush, if you can tell me that what are the remedies that sir has successfully been using, या फिर कहाँ पे तेरे को क्या लगता है, तू थोड़ा बता। अगर मदर टिंचर्स की बात करें फंगल इन्फेक्शंस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने सल्फर क्यों यूज किया है बहुत फंगल इन्फेक्शंस में, मैंने बहुत देखा सर को सल्फर मदर टिंचर यूज करते थे, ओके स्पेशली इन मेल पेशेंट्स। और अगर ओके फीमेल्स की बात करें तो कैशिया एलाटाइक नाम का मदर टिंचर है सर, वो फीमेल्स में स्पेशली यूज करते हैं। Okay, so मेल्स में cassia सल्फर alata पता था, but this male female differentiation we never knew sir, because we knew यस, we मतलब sulfur. फीमेल्स में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है स्किन की, इसलिए। Okay, okay, एंड great. सर आल्सो क्लोजली फॉलोज द रीडिंग्स ऑफ बर्नेट, तो अगर हाँ हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस है तो ही हाँ रिंगवर्म, अगर आपका बॉडी वो फंगस को ग्रो होने के लिए मीडियम देगा तो ही वो फंगस ग्रो होने वाला है। तो डेफिनेटली द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रिंगवर्म और टीनिया, व्हाट वी कॉल फंगल इन्फेक्शंस, इज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट बेसिकली। जब वो ओके पार्ट निकल जाता है तो सर की एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और वो सीखने में मुझे मजा आया कि सर को स्टेजेस का कैसे पिक करने हैं डिसीज के, वो बहुत अच्छे से पता है। जैसे अभी सर ने बताया कि आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ो तो आपको पता है कि ये स्टेज पे क्या देना है, वो स्टेज पे क्या देना है। सो द न्यू थिंग फॉर मी वाज सल्फ्यूरिक एसिड जो सर ने यूज किया टीनिया के केसेस में। ओके टीनिया के केसेस में पेशेंट बहुत ज्यादा क्रीम लगा के आ रहा है, ऑइंटमेंट्स लगा के आ रहा है, स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट्स, और उसके बाद स्ट्राइस डेवलप हो रहे हैं, उसको व्हाइट जो हम बोलते हैं पैचेस, काइंड ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। तो ओके वहां पे सर ने एसिड सल्फ्यूरिकम यूज किया है बहुत ज्यादा, और वंडरफुल रिजल्ट्स आई हैव सीन। मतलब जो रेडनेस है वो बहुत अच्छे से कम होता है, पेशेंट बोलता है। सल्फर क्यों सर कंटिन्यू देते हैं उसमें, दैट वाज अ गुड थिंग। अगर टीनिया इज एक्सेस ऑन बटक्स तो टीनिया यूरोपा नाम का रेमेडी है। ओके फंगल इन्फेक्शन नेक रीजन पे है, हाँ नेक रीजन पे, तो देयर इज अ रेमेडी कॉल्ड कल्किरिया म्यूर, ओके स्पेशली फॉर नेक रीजन फंगल इन्फेक्शंस। सुपर और अगर बहुत ही एक्यूट इसमें आया है कि हाँ अभी 5-6 दिन पहले हुआ है तो सर सीधा रिंगवर्म स्टैट देके वहां पे ही उसको देखते हैं, ओके फिर अपॉइंटमेंट के हिसाब से अगर हुआ है तो वो देंगे ऐसा। सुपर सुपर so sir you have a very good student who is learning in person, but now पूरे इंडिया में आज roughly 100 live attendees थे, so it is like a mini seminar or mini workshop that you have taken and we are extremely thankful. मैं आपसे बहुत बहुत मतलब I cannot express कि मैं कितना, मतलब आप सबकी तरफ से, मैं जो लोग सुन रहे हैं सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने आपका इतना बिजी डे होता है, फिर भी अभी महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिवाली। तो अभी जैसे दिवाली जैसा हमारा चल रहा है और उस दिवाली में भी आपने 1 घंटा हमको दिया, तो आई इट इज रियली हेल्पफुल सर। बहुत लोगों को बहुत नया डायरेक्शन मिला। अभी डेफिनेटली वी ऑल विल रीड, लॉट ऑफ पीपल विल नाउ आल्सो इंस्टा डीएम टू यू। अभी इंस्टाग्राम का साइड इफेक्ट्स भी पता चलेगा सर कि लोग डीएम कर करके आपको पूछेंगे। But that's it. Again, sir, thank you so much, and we will look forward to learn a lot from you. कभी ऐसा और मौका होगा तो प्लीज सर हम लोग को थोड़ा टाइम और दीजिएगा, कुछ नए सेशंस के लिए, कुछ नए रेमेडीज के लिए, कुछ नए थॉट्स के लिए। With that sign, I'm signing off. Thank you so much. Take care, everybody. Bye bye. Bye, Ayush. Thank you once again. Bye bye. Thank you for having me. Okay. Yes. Take Thank care. you. Take care. Thank you, sir. Thank you.